Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, on this YouTube Pratham Test Prep channel. So, Pratham Test Prep YouTube channel. My name is Vidhi P. Gupta, and I came again with another session on percentages advanced level questions today. So, hello, everyone. So, as expected, Pavni is the first one to say good afternoon to me. Good afternoon, sir. How are you people? All good? Meeting after a long time. Yeah, after a break of 2 days, we are meeting. Good afternoon. Good afternoon. Good to see you all. Very nice. Sayam, Sanya, Arushi, Pavni, good afternoon. So, we are here with another session on percentages. As I promised you in my last class that when we were doing basics of percentage, we learned about AB rule, we learned about the net effect formula. So today, I promised you that I will be coming up with some difficult level, I won't say difficult level, but advanced level of questions based on your CUET exam, based on your IPM exam, based on your any of your entrance exam. Be it be a law exam, be it be a management exam, your IM exam, be it be Rohtak, be it be Jammu, be it be Indore. So we will be taking all the exams in consideration and we will be dealing with the topic. Right? So all of you excited? All ready? Yeah? All ready? All of you excited for this session on percentages with an advanced level of questions? चलिए, so फिर से एक बार शुरू करते हैं with our percentages. So obviously we are not going to do any kind of theory or something like that. I will be directly jumping onto the questions part of percentages. Okay, are we ready? I can't see any, yes, I can see any energies. मेरे बच्चे तो without energy होते नहीं है, ये आपको पता है. मैं क्लास तब तक शुरू नहीं करूंगी जब तक मुझे वो energy मुझे नहीं मिलेगी. So I need that energy in my session. Come on, how's the Josh? High, low, medium, very low, बकवास एकदम. क्या है? नाश्ता वाश्ता नहीं किया लगता आज किसी ने. No breakfast. हाँ? Breakfast किया है? Coffee भी breakfast पे? Had poha, had sandwich, had parathas, something like that. We had everything. Yeah. Now the Josh is high. Now Vidhi ma'am can begin the session. Chaliye, so we are going to begin with percentages, and the very first question which you can see on your screen is this. Let's just read the question together and try to solve the question. Okay, let's just try to solve it. Hi Gamakshi, how are you? So it says that MDTV is a popular TV channel. It telecasts the program from 8 a.m. to 12 p.m. It telecasts 60 advertisements each of 8 seconds and 16 advertisements each of 30 seconds. What is the percentage of time devoted in a day for the advertisements? Sanjeev. Okay, Akshat had bread in the morning, so very good, very light breakfast, so you will be very energetic, feeling very energetic right now. Okay, so let's see the question once again. So it says there is a popular TV channel जहाँ पर जो ads जो हैं, telecast जो होते हैं programs, that is between 8 a.m. That is between 8 a.m. to 12 p.m. 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका telecast होते हैं programs, which means this is what the duration of 4 hours. तो 4 hours के ड्यूरेशन में आप लोग प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं. Now, it telecasts 60 advertisements each of 8 seconds. तो कितनी एडवर्टीजमेंट? 60. कितने सेकंड्स की? 8 सेकंड्स की. तो टोटल ये वाली एडवर्टीजमेंट्स का टाइम कितना हो गया? 418 सेकंड्स. ठीक है. नेक्स्ट, 16 advertisements each of 30 seconds. तो अगर आपके पास 16 advertisements है और 30 सेकंड की है, so again the total time consumed for the advertisements here is again 480 seconds. तो 480 seconds पहले और 480 seconds अब. अभी तक मुझे इतना समझ आ गया कि एडवर्टीजमेंट का जो स्लॉट मेरे पास है वो है पूरे दिन में, which is 8 a.m. to 12 p.m. I have 4 hours. उनके बीच में एक तो 60 एडवर्टीजमेंट्स होती हैं for 8 seconds और 16 एडवर्टीजमेंट्स होती है for 30 seconds. So I can take it out 960 seconds from this, और इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं 960 को, तो डिवाइड बाय 60 कर दीजिए. दैट मींस 16 मिनट. 4 घंटे में से 16 मिनट का जो स्लॉट है वो किसका स्लॉट है? एडवर्टीजमेंट्स का. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is, what is the percentage
of time devoted in a day for the advertisements. एक दिन के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ टाइम यू डिवोटेड फॉर द एडवर्टीजमेंट. तो आपके सामने सारी फिगर्स अवेलेबल है. अगर आप देखो तो आप 16 मिनट एडवर्टीजमेंट्स में देते हो आउट ऑफ 4 आवर्स. तो 4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू 60. बट हियर दिस इज व्हाट, देखो फ्रैक्शन आया है अभी. मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज. व्हाट आई नीड इज percentage. So how will I do it? How will I convert this fraction into a percentage? By multiplying it by 100. By multiplying it by 100. 0 and 0, 4 with 4, 2 with 3. That comes out to be 20 over 3, which becomes 6.67. 6.67. So how come Akshat you have written 1.67? I want to understand, because that is the common mistake that every people do. वो लोग क्या देखते हैं, 4 घंटा दे दिया लेकिन इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं. तो आप लोग क्या करते हो, इट इज डिवोटेड इन अ डे. तो मैम 16/24 आवर्स करते हैं, इनटू 100 कर दिया टू गेट द आंसर. इट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट वी डू अक्षत. हमारे पास पूरे दिन में लेकिन एडवर्टीजमेंट्स का जो स्लॉट है वो 8 से 12 का ही है. 4 आवर्स इन अ डे. 4 hours in a day, and out of those 4 hours 16 minutes is devoted to it. So what is the actual correct fraction? That is 16 minutes over those 4 hours. 4 into 60 minutes into 100, because we have to convert it into percentage. So my answer over here is none of these. क्या होता है, दिमाग घूम जाता है जब हम ऑप्शन देखते हैं. नहीं यार, बहुत लोग ऐसे जैसे 6.67 आंसर आएगा ना तो आप वापस से देखना शुरू कर दोगे, ऑप्शन देखोगे यार 1.5, 1.62, कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं डेसिमल में, नंबर में, किसी चीज में गलती तो नहीं कर दी. हम लोगों को ये लगता है. बट देन वी आल्सो हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन हियर व्हिच इज नन ऑफ दीस. सो इफ वी आर श्योर ऑफ आवर आंसर, इफ वी आर श्योर ऑफ द क्वेश्चन, इफ वी आर श्योर ऑफ द लैंग्वेज, देन आंसर इज डेफिनेटली दैट्स नन ऑफ दीस, बिकॉज़ इट्स 6.67%. 6.67%. राइट. आई होप अक्षत ये क्लियर है. तो बेसिकली बेटा जो भी ये आईपीएम एग्जाम होता है जिसके अंदर क्वेश्चन हम बोलते हैं कि डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, अब परसेंटेज है, मैं परसेंटेज को डिफिकल्ट कैसे करूंगी? उसकी लैंग्वेज को ही तो ट्विस्ट करके करूंगी. राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम जो बोलते हैं हार्ड है, आईपीएम का एग्जाम है मैम, इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज द लैंग्वेज व्हिच दे गिव फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन that changes. अगर मैं इसको सीधा तुम्हें क्वेश्चन दे देती that बेटा find out the percentage 16 over 4 into 60 into 100, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देती तो ये इजी हो जाता. अब मैंने इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो इसका नेचर चेंज हो गया. अब इसका नेचर चेंज हो गया तो इट कम्स अंडर डिफिकल्ट और अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, जहां पर हम गलती करने के चांसेस हमारे हैं. एंड माइंड इट, आईपीएम डीयू हमेशा वही मौका देखता है जहां पर आप गलती करते हो. वो वही चीज पकड़ता है कि जहां गलती हो सकती है. तो हमें ये गलतियां नहीं करनी, हमें ये गलतियां नहीं करनी. सो अक्षत अगेन यू आर आस्किंग मी. यस एब्सोल्युटली सानिया, दैट इज वाई जो मैंने आज एडवांस लेवल लिया है ये आप एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया है. जो हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 में करा था हमने बेसिक समझे थे जो यहाँ पर भी मैं यूज करूंगी, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ सकता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेकिंग. सो दीज आर योर CUET IPM इंदौर रोहतक मैनेजमेंट लॉ एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यू कैन से. CUET test as a, we'll figure it out Yuvika, that I will be sharing with you in the class. अभी YT पे बाद में बात करेंगे इस चीज की. ठीक है. अक्षत अगेन आंसरिंग योर क्वेश्चन. मैम 24 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेटा इन्होंने बोला एक दिन में कितना परसेंटेज होगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो खाली वो 4 घंटे का स्लॉट है ना. मेरा पूरे दिन तो चलता नहीं है न्यूज चैनल पे. तो मुझे ये बोला हुआ था व्हाट इज द परसेंटेज, what is the percentage of time which is devoted in a day for the advertisement. ठीक है. अगर मैं बोलूं देखो मैथ्स में तेरे 50 नंबर आए तो तू 50 आउट ऑफ मैथ्स के टोटल मार्क्स में से करेगा या 50 अपॉन एग्रीगेट में से करेगा? टेल मी दिस थिंग. अगर मैं आपको बोलूं मेरे 50 मार्क्स आए हैं मैथ्स में आउट ऑफ 100 और मेरा टोटल मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स 5 पेपर्स के थे वो था 500, तो आप 50 over 500 करोगे अक्षत या 50 upon 100 करोगे? मैथ्स के पेपर में से ही तो परसेंटेज निकालोगे, ओवरऑल में से थोड़ी ना मैथ्स का परसेंटेज निकालोगे. राइट. आई होप अक्षत ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम क्यों 24 आवर्स नहीं लेंगे और क्यों हम 4 आवर्स into 60 ही लेंगे. बिकॉज मुझे परसेंटेज उस एडवर्टीजमेंट के टाइम स्लॉट में से ही बताना है कि कितना परसेंटेज मैं एडवर्टीजमेंट में
क्योंकि 4 घंटा जो स्लॉट था वो प्रोग्राम टेलीकास्ट का था, तो उसमें से परसेंटेज कितना है एडवर्टीजमेंट का, दैट इज 16. क्या are we all good with this thing? Very nice. I'm so happy that you all are replying. Very, very nice. Let's move on to another question of CUET IPM special expected question. Again, a very, very nice question, and I will be doing it with very easy. इसको ना आप 2 तरीके से कर सकते हो. मैं आज ये भी कोशिश करूंगी कि जो एडवांस क्वेश्चंस है, how can you do these questions very easily with basic understanding of a question. If you understand the language of the question, आपको वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, साथ में पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? हरिहरन he goes to a shop to buy an FM radio costing rupees 1404 including sales tax at 8%. He asked the shopkeeper to reduce the price of radio so that he can save the amount which is equal to sales tax. What is the reduction of the price of the radio? कितना रिड्यूस हो गया? yes, अगर मैं इस क्वेश्चन को तरीके से पढ़ूं, थोड़ा सा एक बार और तरीके से पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो एफएम रेडियो का कॉस्ट है वो 1404 है इंक्लूसिव ऑफ 8% टैक्स. ठीक है. अब वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा उससे बोलता है कि भैया डिस्काउंट दे दो, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेल्स टैक्स वाला पैसा है मेरा वो हट जाए. भाई हम जनरली ये करते नहीं है. अगर तुम्हें अगर तुम जनरल मेरी तरह लोग हो, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं स्विगी पे या जोमेटो पे ऑर्डर करती हूँ, तो मैं शायद कूपन इसीलिए अप्लाई करती हूँ कि भैया ये टैक्स कॉम्पनसेट हो जाए, आइटम का रेट तो चाहे वही रहेगा, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं, ये डिलीवरी चार्ज है, ये टैक्स है, एटलीस्ट वो सब चीजें हट जाए. करते हो या नहीं करते? मैं तो करती हूँ, डेली में करती हूँ. जब भी मैं स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करती हूँ, आई ऑलवेज अप्लाई अ कूपन सो दैट माई चार्जेस रिड्यूसेस. ये एक जनरल मेंटालिटी है हम सबकी. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछती, ठीक है, अब हम बात करते हैं बिल्कुल ही डायरेक्ट की, फिर हम बात करेंगे कि IM बेस्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है. अगर मैं डायरेक्ट आपको पूछती कि बेटा 1404 है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ FM रेडियो प्लस 8% टैक्स, तो गिव मी द वैल्यू ऑफ इट. तो इट्स बिकम वेरी इजी. अरे मैम यही तो निकालना है, ये तो सीधा इक्वेट करा और आंसर आ गया. अब लेकिन मैंने इसको ऐसे सीधा ना बोलकर कि मुझे वो 8% की वैल्यू चाहिए, मैंने सीधा ना बोलकर उसको घुमा दिया. क्या घुमाया? He asked the shopkeeper to reduce the price of radio so that he can save the amount which is equal to the sale. अरे सीधा सीधा बोलो ना. 3 Idiots मूवी देखी है? किताबें सीधा सीधा बोलो ना. क्या चाहिए? किताबें. तो यहाँ पर भी वही है ना बेटा, सीधा सीधा समझो ना क्या चाहिए क्वेश्चन में. 8% की वैल्यू, 8% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, घुमा फिरा के भाषा में कि टैक्स की वैल्यू बता दो, क्योंकि उतना ही मैं कम कराना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ. ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप इसको एक बेसिक लैंग्वेज से मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर बताऊंगी इसका, एंड यू विल लव मी फॉर दैट. मैं अगर बोलती हूँ एफएम रेडियो का कॉस्ट X रुपीज है, थोड़ा सा भी बड़ा करके लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझाना है, वरना आप 2 स्टेप में इसका आंसर कर सकते हैं. तो इसके अंदर मैंने 8% जोड़ दिया टू गेट माई वैल्यू ऑफ 1404. तो बेसिकली ये क्या हुआ? 108 by 100 of x is equal to 1404. फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, फिर x की वैल्यू निकालने के बाद आप 8% ऑफ x निकालोगे. करोगे या नहीं करोगे ये चीज? पहले मुझे बताओ, ये चीज समझ आई सबको? पता नहीं आंसर B है, C है, A है, देखते हैं. पहले आप बताओ, हम यही करेंगे ना. अगर मेरा FM रेडियो का कॉस्ट X रुपीज है और मैं 8% उस पर टैक्स लगा रही हूँ, तो X प्लस 8% इज 1404. यहाँ से आप बोलोगे मैम पहले X की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद 8% ऑफ X निकाल दो, क्योंकि वो यही तो पूछ रहा है कि सेल्स टैक्स है. अब मैं बोल रही हूँ इतना भसड़ करने का जरूरत क्या है? मैं ये बोल रही हूँ इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहाँ जरूरत क्या है? क्यों? क्या हम सीधा ये नहीं लिख सकते 108% की वैल्यू है 1404, मुझे चाहिए खाली 8% की वैल्यू, तो यूनिटरी मेथड 108 into 8 काटा पीटी कर दीजिए, आंसर मेरे पास आ जाएगा 10. काट के भी दिखाऊं? कट जाएगा ना, ये तो काट सकते हैं हम. समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो. CUET, IIM, मैनेजमेंट एग्जाम्स, जो भी आपके अच्छे लेवल, नारसी, सिंधी, जो भी अच्छे लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं, वो जो वर्क करते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप एक 1.5 2 पेज लंबे सोल्यूशंस निकालो.
what actually they want is to understand the language of the question, क्योंकि solution तो छोटा ही होगा. Solution आप देखो आपका मुश्किल से 4 लाइनें 5 लाइनें, इससे एक ज्यादा exceed करता ही नहीं है solution. इससे ज्यादा एक्सीड करता ही. अगर आप एक बार लैंग्वेज समझ लो तो यू आर ऑल डन. अब कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से करते हैं, मैम स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड करते थे, हम तो वही करेंगे. और जो स्मार्ट बच्चे हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टनेस का जमाना है, स्मार्ट पेपर्स हमें देने हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर्स देने हैं, तो हम ये अप्रोच यूज करते हैं. क्या अप्रोच यूज करते हैं कि 108% की वैल्यू ये आ गई तो 8% की वैल्यू क्या है. दैट्स इट. क्लियर? समझ आया सबको? आई होप दिस इज ऑल ओके विद एवरीवन. चलिए, so this was my second question which I selected. Let's move on to our third question. I will move on to the third question. Got it, Sanya? Clear, Ayushi? Yes? Sanyam? Ank? Yuvika? Are we all clear with this particular question? Yes? चलिए, अब हम आते हैं. Let's move on to the third question. Look at this question. The beauty of this question. Seems like जहाँ फिगर्स नहीं होती ना, वहां पर थोड़ा सा नसन तिलमिला से जाते हैं. क्या यार, क्यों फिगर नहीं, क्या है वेरिएबल्स में करेंगे. But then just read the question once, क्या पता कुछ स्ट्राइक कर जाए बढ़िया सा क्वेश्चन में. So again, yet another expected question of IP and CUET which says, in an office there were initially n employees. The HR manager first hired P% employees. Then after a month Q% employees left the office. पहले उसने क्या करा, P% ऐड करे, Q% उसके बाद हटा. Then there were finally n employees remained in the office. Employees तो change ही नहीं हुए. Initially there were n employees and finally n employees remained. जितने थे उतने ही रहे, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ बढ़ाने और घटाने का काम हुआ. Question is find the value of P minus Q. Find the value of P minus Q. हाँ जी, कोई बता सकता है थोड़ा सा ब्रेन्स अप्लाई करके कि इसके अंदर मैं अप्लाई क्या करूं. Little bit of brains because this I have done in my previous percentage session. If you have watched my previous percentage session, I have done this question. This type of question I have covered in that. बस ये है कि सीधी लैंग्वेज ना देके वापस लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया है as per the different exams so that to make the language difficult. Okay, और x plus p, q% of x plus p% of x. बेटा अक्षर, किसी चीज को बढ़ाया और उसके बाद बढ़ाने के बाद घटा दिया, लेकिन घटाने के बाद वैल्यू सेम रहती है. क्या यूज होगा इसमें? कैन यू थिंक? Apply your brains. Anybody who can give me the answer? What will I use here? It's a single line solution. Single line. Absolutely right, Sanya. Absolutely right, Sanyam. That's a net effect formula. आप एक चीज को, आपके पास n एम्प्लॉइज थे, आपने n एम्प्लॉइज को P% इंक्रीज किया और उसके बाद Q% डिक्रीज किया, फिर भी n आ गया, तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ? अंडा, 0. There is no overall change. Overall change is 0. Overall change is 0. So हम लोग का नेट इफेक्ट फॉर्मूला या ओवरऑल इफेक्ट फॉर्मूला क्या होता था? You remember? A plus B plus AB over 100. So overall it's 0. पहले आपने इंक्रीज किया तो आपका प्लस P आया, एब्सोल्युटली कुछ सक्सेसिव चेंज, then minus Q, then plus P into minus Q over 100. If I take this thing on the right left hand side, what I'll get is PQ over 100 is my P minus of Q. That is what is being asked in the question. That tell me the value of P minus Q, which is PQ over 100. अब ये question अगर मैं आपको ऐसी, ये तो चलो अभी मैं आपको explain कर रही हूँ, we are doing question in detail by understanding the language. अगर बिना इसके देते तो सोचते रहते P कहाँ से निकाले, अच्छा Q कहाँ से निकाले. तो बेटा हम लोग ना सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पे फोकस करो. Always, always, always read the question twice, but in a break. हमेशा मैथ्स में तो ये चीज फॉलो करो ही करो कि मैथ्स में यू नेवर रीड अ कंप्लीट क्वेश्चन. व्हाट यू रीड इज फर्स्ट द स्टेटमेंट देन द क्वेश्चन. सबसे पहले आप स्टेटमेंट करोगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है उसको समझते जाओ, एंड यू विल क्रैक द क्वेश्चंस, यू विल क्रैक योर CUET, यू विल क्रैक योर IPM. यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. चलिए, so we'll move on to the next question. Again,
interesting question. Look at the question. एक बार पढ़ लीजिए, सब लोग साथ में पढ़ते हैं question. In a village, there are 3 people who contested for the post of village pradhan. Due to their own interest, all the voters they voted, and no one vote was invalid. The losing candidate got 30% of the votes. What could be the, ध्यान से पढ़िएगा question because यहीं पर झोल. What could be the minimum absolute margin of votes by which the winning candidate led by the nearest rival if each candidate got an integral percent of votes? Now question पढ़ा मैम, सर के तो ऊपर से निकल लिया, तो हम भी अगले क्वेश्चन पे निकल देते हैं. जनरली हमारी टेंडेंसी ये होती है. लेकिन अभी अगर आपने मैम को अच्छे से सुना हो तो मैम ने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था बेटा स्टेटमेंट पढ़ो. तो अभी तो क्वेश्चन पढ़ा तो सर के ऊपर से गया, तो अब इसको सर पे बिठाना है और फिर सर के अंदर भी बिठाना है. तो थोड़ा स्टेटमेंट्स के तरीके से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. इन अ विलेज 3 people contested for the post of village pradhan. ठीक है जी, समझ आ गया. Due to their own interest, all the voters voted and none of the vote was invalid. ये भी समझ आ गया. Third statement, the losing candidate got 30% vote. तो मुझे यहाँ पर अपना पहला इक्वेशन मिला कि लूजिंग जो कैंडिडेट है उसको कितना परसेंटेज वोट मिला, 30%. कितना परसेंटेज वोट्स मिला, 30%. नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय व्हिच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल. कहने का मतलब ये है कि मिनिमम कितने परसेंटेज के गैप से, एब्सोल्यूट मार्जिन मतलब डायरेक्ट परसेंटेज का मार्जिन, कि डायरेक्टली कितना एब्सोल्यूट मार्जिन से विनर जो है जीता है अपने नियरेस्ट राइवल से. जो उसका नियरेस्ट राइवल, जो 3 लोग है ना, तो एक विनर, देन फर्स्ट वन रनर अप एंड द सेकंड रनर, लाइक दैट. तो जो उसका सबसे क्लोज वाला है उसके परसेंटेज वोट्स में और जो फर्स्ट रनर अप है उसके परसेंटेज वोट्स में कितना डिफरेंस है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. ठीक है. साथ में उन्होंने ये दे दिया है कि हर बंदे को इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलता है. इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए. That could not be decimal, that could not be fraction, that has to be a fixed number, that has to be a counting number from negative. Obviously negative हो नहीं सकता because of votes, तो positive number आपका होना चाहिए. I think question अब सबको समझ आ गया होगा. I've explained it completely. तो अगर losing को 30% मिले तो बाकी 2 candidates को total votes कितने मिले होंगे, बाकी 2 candidates को total मिले होंगे 70%. समझ आया. अब क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों को आधे आधे दे दो, 35% इसको दे दो, 35% इसको दे दो. तो क्या इसके अंदर ये जस्टिफाई करेगा हाइपोथेसिस मेरी? नहीं, क्योंकि विनर कौन होगा भाई? अगर दोनों को सेम वोट्स दे दोगे तो विनर कौन होगा? विनर तो होगा ही नहीं. दैट मींस दिस कुड नॉट बी माय आंसर. मतलब ये मेरा हो ही नहीं सकता, केस ही नहीं बन सकता. तो दूसरा केस क्या होगा? चलो एक को ना 1 से बढ़ा देते हैं. अब आप बोलोगे मैम 1 से ही क्यों बढ़ाया? क्योंकि इंटीजर है ना बेटा. साफ सीधी बात है, हमारे लिए परेशानी ही नहीं है. क्वेश्चन में इंटीजर है तो मैं 1 को 36% दे देती हूँ, 1 को 34% दे देती हूँ, 1 को 36% दे देती हूँ, 1 को 34. तो क्या ये जायज है? हाँ भाई. लूजिंग कैंडिडेट 30% ले रहा है, एक विनर है जो 36% ले रहा है, एक 34% ले रहा है. तो व्हाट इज द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन? That means the difference between the two. Absolute margin का मतलब यही है कि आपको ये नहीं बताना कि कितना परसेंटेज उसका ज्यादा है कितने. Absolute margin मतलब दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस, and that difference over 36 minus 34. Yuvika, 36 minus 34, that margin is of 2%, which is minimum absolute margin. Got it, Yuvika? Yes, clear? So बेटा यही क्वेश्चन होते हैं. अब आप देखो इस क्वेश्चन में कराने के बाद क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? टेल मी. जब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया तो क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं. लेकिन जब मैंने नहीं कराया, स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी या क्वेश्चन एक बार ही पढ़ के छोड़ दिया तो हमसे तो ना हो पाएगा. ये टेंडेंसी रहती है हमारी. मेरे को बेसिकली वो चीज खत्म करनी है, ये टेंडेंसी कि हमसे ना हो पाएगा. भैया परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन तो क्या दिक्कत है? सब हो पाएगा, राइट? सब हो पाएगा हमसे. तो हम लोगों को क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है,
लैंग्वेज पढ़नी है और उसके बाद सॉल्व करना है। मैंने अभी तक 4 क्वेश्चंस लिए, चारों क्वेश्चंस में जो मेन गेम था वो सोल्यूशन का नहीं था। The main game is of the language of the person, which generally your CUET and IM people they basically घुस जाते हैं उसके अंदर। भैया लैंग्वेज घुमा दो, जलेबी इमरती सब बना दो, यहाँ पर सीधी सीधी काजू बर्फी देनी नहीं आती हमें प्लेन का मतलब नहीं समझ आता, हमें समझ आता है कि हम जलेबी इमरती ही देंगे। तो that is what the mindset of the examiner when you give your CUET and when you give your IM, okay? बेटा 35 ही क्यों लिया? क्योंकि 2 कैंडिडेट्स हैं। अब मीनाक्षी जैसे तू और मैं अगर हम दोनों एक इलेक्शन में हम दोनों को टोटल 70%, एक विनर एक लूजर, तो आधे आधे तो लेंगे नहीं। तो मैंने बोला ना ये केस तो हम ले ही नहीं सकता आधे आधे वाला, क्योंकि इसमें कोई विनर ही नहीं होगा। तो अब जब आधे आधा नहीं होगा तो उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि हम दोनों बिल्कुल करीब से हारे, एकदम करीब से हारे या जीते, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वुड बी दिस। यस, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी दिस, राइट? सो ये चीज हमारी जस्टिफाई कर गई। क्लियर है मीनाक्षी? आई होप योर डाउट इज क्लियर्ड नाउ। डन? चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन। ठीक है, ये आई थिंक पता नहीं आप लोगों ने पहले करा है नहीं करा, बट क्या होता है कई बार एग्जामिनर बोलता है भैया नेट इफेक्ट, चीटिंग सब कुछ एक साथ दे दूं तो मजा आए, है ना? वो कहते हैं ना सब कुछ 56 भोग एक साथ दे दो तभी तो मजा है प्रसाद का। जब 56 भोग एक साथ आएंगे तो वो 56 भोग एक साथ दे देते हैं तुम्हें। ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करो, पूरा परसेंटेज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से जज कर लूं तुम्हें आता है नहीं आता। सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन, रीड इट योरसेल्फ। व्हाट द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ सेल Ankur gives a discount of 25% to his customers, but he marks up the price to 40% above the cost price. क्या करा? ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना यार। हाय दिव्य, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है भैया। मैं कोई बिजनेस वुमन हूँ या कोई बिजनेस चला रही हूँ, मैं कोई चीज बाजार से खरीद के लाऊंगी, बिल्कुल मैं उसका पैसा बढ़ाऊंगी और टू अट्रैक्ट द कस्टमर मैं डिस्काउंट दूंगी। यही तो स्ट्रैटेजी सब लोग बनाते हैं, यही तो स्ट्रैटेजी सबकी होती है। ठीक है, इसमें क्या बुराई है? क्वेश्चन समझ आ गया, दिमाग में बैठ भी गया कि भैया मैं एक चीज लाई, मैंने प्राइस बढ़ाया और उस पर डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट, ही वॉज ग्रीडी शॉपकीपर, ही वॉज वेरी ग्रीडी। एवरीबडी इज, आई गेस, इन दिस scenario and in this world right now everybody is greedy, yeah? So he uses a faulty balance which measures 20% less weight. भाई मतलब हर तरह से कस्टमर को तो मतलब निचोड़ लो अच्छे से। एक तो तुमने चलो आप लाए, माना कि प्रॉफिट, भैया आप काम कर रहे हो तो प्रॉफिट तो लोगे, फिर आप चीटिंग क्यों करी? आप चीटिंग क्यों करी? उसने क्या चीटिंग करा कि जितना आपने क्वांटिटी मांगा उसने उससे 20% कम दी और पैसा तो पूरे का ले लिया, पैसा तो पूरे का ले लिया। Now the question is find out his actual profit percent. उसकी actual profit percent कितनी है आपको ये बताओ। क्वेश्चन समझ आया? मुझे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझाना है। सॉल्व तो मैं आपको करा दूंगी, शॉर्टकट मेथड से भी करा दूंगी, जनरल मेथड से भी करा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ आना चाहिए। एक बार ही वापस से, पहले आप एक आइटम लाए, आपने उसका प्राइस इंक्रीज करा, फिर आपने डिस्काउंट दे दिया, ये तो चलो आपने करा टेंडेंसी। इसके बाद आपने क्या करा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करा कि आपने क्वांटिटी भी 20% चोरी कर ली, क्वांटिटी भी 20% कम दी, तो ओवरऑल कितना कमाया भाई बता तो दो। तो इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड करा रही हूँ, व्हिचएवर यू फील लाइक डूइंग इट प्लीज डू। मैं पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देती हूँ आपको। जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम ले लेते हैं, लेट्स से बता रही हूँ अभी बता रही हूँ कि 20% किस पे लगेगा अक्षय। कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट्स से 100 ग्राम, मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, मैंने अपने आप ले लिया। ठीक है, लेट्स सी दिव्या एंड दिव्या, आई एम सपोजिंग हमने रीटेकर में करा था ना क्वेश्चन, वी हैव डन दिस इन रीटेकर और इन फैक्ट वी हैव डन इट लास्ट टाइम ओनली आईएम के स्पेशल हैंडआउट में। यस, वी हैव डन द क्वेश्चन। नाउ दिस इज सेम क्वेश्चन, गुड दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट कि अब आपको जो परसेंटेज वेट का लेस भी दिया वो भी परसेंटेज में दिया, तो दैट वाज समथिंग वेरी नाइस इफ यू हैव फिगर्ड इट आउट। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम्स लेट्स से 100 ले, ठीक है, पहला स्टेप। प्रॉफिट कितना है? 25। प्रॉफिट हमें पता ही नहीं, प्रॉफिट तो पता ही नहीं, तो प्रॉफिट कैसे निकाले हम? प्रॉफिट कैसे निकाले? देखो, आप लोगों ने लास्ट टाइम मेरे साथ नेट इफेक्ट फॉर्मूला किया था और अभी भी हमने किया है नेट इफेक्ट फॉर्मूला।
आपने एक चीज को बढ़ाया और फिर उस पर डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से निकाल लो, नेट इफेक्ट निकालो या प्रॉफिट निकालो कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। सो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, पहले आपने 40% बढ़ाया, फिर आपने 25% का डिस्काउंट दिया, तो प्लस 40 25/100, ये कितना हो गया 15 माइनस 10, मतलब आपने ओवरऑल 5% कमाया, आपने ओवरऑल 5% कमाया, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 5%, प्रॉफिट कितना हो गया 5%। ठीक है, अब आपने सेलिंग प्राइस निकाला 100 ग्राम का, 100 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना आया 105/100 इंटू 100। ये कैसे आया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है दैट सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। पुट करा तो हमारे पास 105 आता है। मतलब बीइंग अ कस्टमर मुझे तो 105 रुपए की आइटम मिली, मुझे तो 105 रुपए की आइटम मिली बीइंग अ कस्टमर। अब हम ये देखते हैं कि शॉपकीपर को कितने की पड़ी थी। भाई शॉपकीपर ने 100 ग्राम के हिसाब से मुझे 105 रुपए में दिया, बट शॉपकीपर ने दिया तो खाली 80 ग्राम ना, उसका पैसा तो 80 ग्राम का लगा और उसने मुझसे लिया 100 ग्राम का, तो उसका पैसा कितना लगा, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम व्हिच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अगर 100 ग्राम का 100 था तो 80 ग्राम का 80, तो ये मैंने इतने में बेचा, आई एम अ स्मार्ट वन, मैंने 105 रुपए में बेचा और खरीदा कितने में वो आइटम 80 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 25/80 into 100, that gives me 31.25%, that gives me 31.25%। ये तो हो गया लंबा चौड़ा तामझाम, लंबा चौड़ा तामझाम कि समझा दिया, भैया 100 ग्राम दिया था, 5% प्रॉफिट था, तो मैंने ओवरऑल आपको 105 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 105 में तो मैंने आपको बेचा, या एब्सोल्युटली अंश। सो 105 रुपए में तो मैंने आपको बेचा, लेकिन मेरे को खरीद कितने में पड़ी उसकी, खाली 80 ग्राम की कॉस्ट चाहिए मुझे। क्यों मैंने 80 ग्राम लिया, somebody was asking me 20% लेस वेट, तो वो यहाँ मैंने यूज करा कि 100 ग्राम वाला चीज मुझे 80 ग्राम चीज मिली, तो 80 रुपए में, तो 80 और 105 का डिफरेंस अपॉन 80। ये तो हो गया जनरल मेथड, ये हो गया जनरल मेथड। अब मैं इसको एक और मेथड से कराती हूँ, ब्लू पेन से, छोटी सी जगह में हो जाए। आपने ये निकाला था ना कि प्रॉफिट 5% है, आपने ये निकाला था प्रॉफिट 5% है, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो उसने चीटिंग कितनी करी, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि उसने चीटिंग कितनी करी। 20% लेस वेट का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को चीटिंग फॉर्मूला याद है, चीटिंग फॉर्मूला ये बहुत ओरली दिमाग से कर सकते हो, सिंगल लाइन में आंसर दे सकते हो। 5% मुझे समझ आ गया, 20% less weight, can we do it by cheating? Cheat upon total value minus cheat into 100, right? Which is cheat is what 20% less, मतलब अब let's say अगर कोई वही 100 ग्राम की चीज है तो 80 में मिली, ठीक है। नीचे सॉरी चीटिंग कितना करा 20 ग्राम, चीटिंग कितना करा 20 upon 80 into 100, which means 25%। तो बेटा आपको एक जगह आपने 5% प्रॉफिट कमाया और एक जगह आपने 25% का प्रॉफिट कमाया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, नेट इफेक्ट फॉर्मूला। अगेन ओवरऑल प्रॉफिट इज नेट इफेक्ट, so 5 plus 25 plus 5 into 25/100, that also gives me answer as 31.25, 31.25, right? So to solve a question, देखो हम लोग एलिमेंट्री एलिमिनेशन मेथड और इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इट, बट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब इसी लैंग्वेज को मैं अगर 3-4 तरीके से और भी घुमा सकती हूँ, मैं और भी इसके अंदर इंटेंस परसेंटेजेस यूज कर सकती हूँ, कुछ भी यूज कर सकती हूँ in order to confuse you. But if you understand the basics of percentage, AB rule, net effect formula, and basic things about percentage, you will be able to solve each and every question of percentage. So IIM, CUT, management, law, any exam, what they actually test is your conceptual knowledge. So once you are clear with your concepts of percentage, give me any question here, I'll be able to. Right? So I hope all the 5 questions, I've taken 5 questions. So all the 5 questions, they are clear, perfectly fine to you, right? ऐसा लगता है कि सेशन शुरू होता है और शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, बट 30-35 minutes goes like that only, just doing the questions. It goes like that only. Chaliye, so I think these are the questions which I have planned for you from percentage chapter for today's YouTube live session.
So I hope you really like the video. Do like the video, do share the video, and we'll be meeting again next time with some more questions on different topics. So I will be taking, I think, profit and loss in my next class. Stay tuned. Good day. Bye-bye. And take a lot of care of yourself. COVID is approaching. Things are changing in Delhi. So I want all you to be safe. Okay. Please adhere to COVID protocols, COVID guidelines. Keep yourself clean. Keep yourself safe. Stay at home and take care. Right? Bye. Good day. Vidhi P. Gupta signing off from today's YouTube live session from Pratham Trek. Thank you.